Welcome students. Today we will do notice writing. So we have done previously message writing, letter writing. Now the notice writing. Very important for you, this notice writing, and very easy also. If you know the format properly, then easily you will get 5 to 7 marks in the examination. Okay, so let's start the notice writing. First of all, I want to tell you what is notice writing, why we write this notice. Okay, so what is notice? A notice is a short information given about some event or happenings which is formally communicated to the group of people to whom it may concern. So this is what the notice writing. Notice writing होता है एक छोटा सा information, isn't it? Any of the information आपको स्कूल का देना है, ऑफिस से देना है, okay? That information about any sports or the events, isn't it? That and this notice writing is the formal communication, isn't it? So this is given, notice writing दिया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल को, जब हम लोगों को बहुत लोगों को एक साथ इंफॉर्मेशन देना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर. सो वी राइट दिस नोटिस राइटिंग. Okay, so this it may be written to give information about lost things. Okay, कोई भी चीज आपको स्कूल में ही वी आर गोइंग एंड इफ वी लॉस्ट एनीथिंग, कुछ भी हम लोग गुम हो गया, लॉस्ट हो गया हम लोगों का, देन वी गिव द नोटिस, डिस्प्ले कर सकते हैं नोटिस लिख के, सो दैट सारे लोग देख सकें दैट समथिंग इज लॉस्ट और किसका लॉस्ट हुआ, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द थिंग जो लॉस्ट हुआ है उस चीज का पूरा इंफॉर्मेशन इफ वी राइट एंड मेक इट अ नोटिस बना करके इफ वी राइट एंड डिस्प्ले, उससे क्या होगा कि सारे लोग एक साथ उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं एंड इजिली यू कैन गेट द थिंग बैक. देन about the meeting. Okay, so if you have the meeting you have to conduct, and if you want to call, आपको सारे टीचर्स को, सारे स्टाफ्स को एक साथ बुलाना है, then we can write a notice and display it, or we can give or post it or on any of the side. Okay, next is the declaration of holidays. Yes, we are getting the holidays in school, so every time we used to give the notice to the children, to the parents or to the teachers. So for that purpose also notice writing जरूरत पड़ता है. A cultural or sports events. Okay, so different activities, हम लोगों के स्कूल में इतनी सारी activities होती हैं. For all the activities, the teachers in charges or the principal, they have to give the notice, प्रायर नोटिस टू द स्टूडेंट्स. पहले हम लोगों को स्टूडेंट्स को नोटिस देना रहता है अबाउट द कल्चरल प्रोग्राम, द स्पोर्ट्स इवेंट्स और एनी ऑफ द एक्सकर्शन वी आर गोइंग. अगर हम लोग बाहर कहीं जाना है, पिकनिक में जाना है, टूर पे जाना है, तो उसका नोटिस वी हैव टू गिव टू द पेरेंट्स और टू द चिल्ड्रन. फॉर दैट ऑल्सो वी आर यूजिंग दिस नोटिस राइटिंग. ओके, अंडरस्टूड. नाउ आई विल टेल यू द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग. ओके, सो आप लोगों को नोटिस राइटिंग लिखने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए उसका फॉर्मेट क्या है. अगर फॉर्मेट इज करेक्ट देन यू विल स्कोर इजिली, यू विल स्कोर द हाफ मार्क्स. Okay, if you have the 7 marks in the notice writing, then easily you will get the 4 mark. That means first thing is that you have to make a box. Okay, the first format, the first point is you have to make a box for writing a notice. Previously also in the message writing I told you that you have to make the box. Here also in notice writing, as it is a formal written message, so we have to make a box. एक आपको सबसे पहले box बनाना है, and on top of the box, see I have written name of the institution. Okay, so name of the institution की जगह पर आप अपने ऑफिस का, स्कूल का, कॉलेज का जो भी है उसका आप नाम लिखिएगा. ओके, एंड सेकेंड लाइन में ठीक नीचे उसके आप देखिए मिडिल में आई हैव रिटन नोटिस. ओके, उस नोटिस वर्ड को लिखना है. उस वर्ड को पढ़ने से isn't it, when any of सबका नजर उस पर कैची साइड जाएगा, that it is a notice displayed, notice है. ओके, देन थर्ड लाइन में आप देखिएगा आई हैव रिटन ऑन द राइट साइड डेट. आपको डेट लिखना है. ओके, DAT नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट द प्रॉपर डेट. ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज
if it is 14 September 2020 डेट लिखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ लाइन में ऑन द मिडिल ऑफ द बॉक्स वी हैव टू राइट द टाइटल. ओके, टाइटल क्या है आपके टॉपिक का, नोटिस का आपका टाइटल क्या है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव लॉस्ट समथिंग, सो यू कैन राइट लॉस्ट. ओके, और if you want to go for the excursion, you can write the educational tour, or if you want to go for the picnic, you can write the for picnic. So this is what the any title, particular title you have to give for the notice. आपको क्या notice देना है उसका title आपको जरूर लिखना है. Okay. Now after writing this, पहला हो गया बॉक्स बनाना, सेकंड हो गया आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर आपका इंस्टीट्यूशन क्या है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस का नाम और जगह. ओके, वेयर इट इज, दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, पटना, वो आपको लिखना है. सेकंड लाइन, थर्ड स्टेप इज द नोटिस, आपको वर्ड लिखना है. फोर्थ स्टेप इज द डेट यू हैव टू गिव, and the fifth step you have to write the title. Now the sixth step I am coming here. Now the body content. अब आपको लिखना है कि नोटिस क्या आपको डिस्प्ले करना. ओके, सो नोटिस I will start with this is to inform that. Okay, this is to inform that. इस तरह से हम लोग नोटिस स्टार्ट करते हैं और जो भी हमको नोटिस लिखना है देन वी विल राइट दैट. ओके, आफ्टर राइटिंग द नोटिस, जब हमारा नोटिस पूरा लिखना कंप्लीट हो जाएगा, देन लास्टली you can see here I have written there on the right side signature. Okay, signature है आपको, signature means name of the person who is writing. नोटिस जो भी आपको डिस्प्ले कर रहा है, स्कूल का प्रिंसिपल है, इंचार्ज है, टीचर है, हेड बॉय है, हेड गर्ल है, मॉनिटर है, दे विल राइट देयर नेम. वो अपना नाम लिखेगा और नीचे डेजिग्नेशन लिखना. डेजिग्नेशन मीन्स आई टोल्ड यू पोस्ट आपको लिखना है. अगर आप मॉनिटर है तो आपको नीचे मॉनिटर, हेड बॉय है तो हेड बॉय, गर्ल है तो गर्ल. ओके, हेड गर्ल है तो हेड गर्ल. इफ यू आर प्रिंसिपल और इंचार्ज यू कैन राइट. ओके, पहले नाम और सिग्नेचर एंड देन द designation. So this is what the format of notice writing. You have to remember this. अगर आपको format नहीं याद रहेगा then you won't be able to write the notice writing. Okay, numbering करके आप याद रखिएगा. पहला नंबर बॉक्स, सेकंड नंबर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, थर्ड नंबर नोटिस, फोर्थ डेट डालना, फिफ्थ है टाइटल लिखना, सिक्स्थ है बॉडी कंटेंट, 7 is name and signature, and the 8th number में आपका आ जाता है designation. Okay, so 8 points you have to remember for the format of notice writing. Now I am giving you one question. Okay, how we will solve this notice writing. The first question is, write a notice to inform the students about a debate competition to be held on 15th October 2020 in school campus. Okay, so here in this question it is not mentioned that whether you are the which designation you belong. Okay, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई डेजिग्नेशन नहीं दिया गया है. सो यू कैन राइट एज अ क्लास मॉनिटर और हेड बॉय और हेड गर्ल की तरह भी हम लोग इस नोटिस को डिस्प्ले कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी द answer how I have written here the notice writing. So first of all I have made the box here. आप देखिएगा येलो कलर में अंदर इट इज अ बॉक्स, पीछे आपका बैकग्राउंड व्हाइट है. ओके, सो येलो इज अ बॉक्स हियर. सबसे पहले मैंने बॉक्स बनाया है एंड देन ऑन टॉप देखिए आप लिखा है मैंने स्कूल का नाम, DAV पब्लिक स्कूल. ओके, अगर आप चाहें तो आप कॉमा देके पटना लिख सकते हैं, बोकारो मीन्स वेयर एवर यू आर, दिल्ली, कहीं भी आपका है प्लेस का भी नाम आप लिख सकते हैं. ओके, DAV पब्लिक स्कूल. और ठीक उसके नीचे मैंने मिडिल में लिखा है NOTICE, नोटिस. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आपको ये नोटिस लिखना बहुत जरूरी है. थर्ड लाइन में देखिए डेट लिखा हुआ मैंने 15th October 2020. इन दिस वे यू विल राइट द डेट. ओके, एंड फोर्थ लाइन में देखिए आपको टॉपिक लिखा हुआ है, टाइटल दैट इज डिबेट कॉम्पिटिशन. सो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द डिबेट कॉम्पिटिशन. ओके, सो नेक्स्ट लाइन में देखिए आपका बॉडी कंटेंट कैसे स्टार्ट हुआ है. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट अ डिबेट कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन आवर स्कूल campus on 15th October 2020. Interested students are requested to submit their names to the undersigned by 10th October 2020. Lastly, Ravi, school captain. Okay, if you are a girl, you can write your name.
If you are a boy, boy can write the name. Girl can write the name. And then the designation I have written here, school captain, because क्वेश्चन में आपके मेंशन नहीं है कि आपका डेजिग्नेशन क्या है. इफ इट इज मेंशन, अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा यू आर द हेड बॉय और हेड गर्ल और प्रिंसिपल और इंचार्ज, देन आप उसी को लिखिएगा. अगर आपका नाम भी मेंशन है क्वेश्चन में तो आप उस नाम को लिखिएगा. Sometimes you will get the name of the school also, isn't it? Then you will write the name of that particular school. आप अपने स्कूल का नाम नहीं लिखिएगा. Okay. Now the next question. One more question I have solved here. You see that question number 2. Write a notice to inform the students about an educational tour to Rajasthan in the coming winter break. So in this question also, यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है किसी बच्चे का और ना ही डेजिग्नेशन लिखा है. ओके, सो आई विल राइट माई नेम हियर and designation I can give here whatever captain or head boy, head girl. Let's see how I have written the notice. First of all, I have written here the name of the school, DAV BSCB Patna. Okay, see, पहले वाले नोटिस में मैंने आपको प्लेस का नाम नहीं लिखा था, आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं. एंड सेकेंड वाले में आई हैव रिटन हियर पटना. ओके, नेक्स्ट सेकेंड लाइन आपका देखिए लिखा हुआ है नोटिस, वेरी कंपलसरी मैंने बताया है. थर्ड लाइन में डेट लिखना है. बट सबसे पहला पॉइंट आपका था आपको बॉक्स बनाना है. सो ये येलो कलर का पेज आपका एक बॉक्स है. ओके, याद रखिएगा, पहले बॉक्स, सेकेंड इज नेम ऑफ द स्कूल प्लस प्लेस, थर्ड लाइन इज नोटिस एंड फोर्थ स्टेप में आपका आता है डेट. एंड डेट आप लिखिएगा, मैंने किस साइड लिखा है वो आपको ध्यान देना है. ओके, इसी साइड में आपका डेट लिखाएगा. फोर्थ लाइन अब आपका हो जाए एन एजुकेशनल टूर, दैट इज द टाइटल ऑफ द notice. Okay, now the next comes the body content. This is to inform you that our school is organizing an educational tour to Rajasthan in the coming winter break. The students will get an opportunity to see the feudal grandeur of Rajasthan in Jaipur. Interested students must deposit Rs 4,000 per head to the undersigned latest by 20th December 2020. The school shall meet half of the travelling and boarding expenses. Now the name is Pranjal or Nitin, head boy or head girl. Okay, so here I have written the head boy, Pranjal is the girl, so head girl should be there पहले, एंड देन नितिन के नीचे हेड बॉय होगा, प्रांजल के नीचे हेड गर्ल होगा. ओके, आप लड़की हैं तो आप नीचे हेड गर्ल लिखिए, एंड आप बॉय हैं तो यू कैन राइट द हेड बॉय. ओके, सो दीज आर द स्टेप्स वी हैव टू फॉलो. अगर आप फॉर्मेट को आप नहीं ध्यान से फॉलो करिएगा तो आपका नोटिस राइटिंग डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए. ओके, सो यू फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर द फॉर्मेट. बॉक्स बनाना कभी नहीं भूलिएगा notice writing में. Okay, so 2 questions I have given you for practice. Okay, you have to do this one. If you do it of your own, then you will improve your writing skill also. Okay, so you do it. If you feel like difficult in making this notice writing, then comment box is there. You can write there. If you have any problem, I will give you the answer to these questions also in the next video. Okay, so the first question, let's see. You are the principal of your school. Okay, so in this question आपको designation बता दिया गया है कि आप principal हैं स्कूल के. Okay, so remember that whenever we are writing the notice writing आप लिखिएगा, नीचे designation में आपको principal लिखना है. Notify the students that from a certain day they must attend school in their winter uniform. तो आपको क्या नोटिस लिखना है? स्टूडेंट्स को नोटिस लिख के बताना है कि विंटर आ रहा है और दे हैव टू वेयर द स्कूल यूनिफॉर्म. ये नोटिस प्रिंसिपल को निकालना है. ओके, सो यू हैव टू मेक द बॉक्स बनाना है, स्कूल का नाम लिखना है, नोटिस लिखना है, डेट डालना है, देन टाइटल डाल करके देन नोटिस आपको डिस्प्ले करना है. ओके, नीचे आप प्रिंसिपल लिखना मत भूलिएगा डेजिग्नेशन में. Second question, you are head boy, head girl or head boy of the school. Draft a notice for the extra tutorial classes in mathematics for weak students during summer vacation. So this is what, you are the head boy or head girl. आपको यहाँ पर भी designation दिया हुआ है. Extra tutorial classes
आपका टाइटल हो गया, ध्यान दीजिएगा। ओके, इस तरह से 2 नोटिस आप लिखिए, खुद से लिखिए। ओके, मेक इट अ बॉक्स, जैसे मैंने फॉर्मेट बताया उस तरह से करिए। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो इफ यू फील लाइक एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है सो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए और लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।